welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is duties of a bailee. Guys, I've told you that we'll be covering in 4 different videos 4 different concepts, namely duties of a bailor, which I've already covered, duties of a bailee, then I'll be covering rights of a bailor and rights of a bailee. So guys, stay in tune with all my videos. And guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with duties of a bailee. Guys, we'll be covering 5 important duties of a bailee under the Indian Contract Act concerning different provisions of the Indian Contract Act. अगर मैं आपको short में बताऊं, what are the 5 different duties of a bailee? तो वो रहती हैं ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड. फर्स्ट एंड द foremost is that you have to take reasonable care of the goods bailed as a bailee. Second, you do not have to make any unauthorized use of the goods bailed. Third, you do not have to mix your goods, bailee's goods, with that of bailors. Then fourth, you do not have, you are duty bound to return those goods back to the bailor as soon as a specific purpose for which those goods were bailed has been accomplished. And fifth important duty is that you have to return along with the goods, principal good, you have to return any accretions, any profit or any increase in the goods bailed. So guys, moving on with all these important duties of a bailor, बहुत interesting. This video is going to be quite a bit of lengthy, but moving on with section 151 of the Indian Contract Act. सबसे पहले हम ये देखेंगे that you have to take, as a bailee, you have to take reasonable care of the goods bailed. Guys, reasonable care has always been a question of fact. I've told you quite often that reasonable care क्या होती है? It is a question of fact in the sense that it depends upon facts and circumstances of each case. It depends from case to case कि reasonable care क्या होती है, वो हमें पता है. But section 151 of the Indian Contract Act एक standard care की बात करता है. It says that a bailee is bound to take reasonable care of the goods bailed. अब reasonable care का standard क्या बता रखा है section 151 में? वो ये देख रखा है that as a bailee you have to take reasonable care of the goods bailed as a man of ordinary prudence would have taken under similar circumstances. Right? Had these goods belonged to you of the same quantity, quality, bulk or value, तो जितना ध्यान आप अपनी goods का रखते हैं उतना ही ध्यान आपको bailor की goods का रखना है. I mean to say that आपको reasonable care रखनी है. Reasonable care is a question of fact. More often than not, it depends upon facts and circumstances of each new case. But section 151 of the Indian Contract Act gives us a standard of care which is to be taken. और वो क्या care होती है? आपको उतनी केयर रखनी है एज अ बेली ऑफ गुड्स जितना आप अपनी गुड्स का रखते हैं. हैड दोज गुड्स बिलोंग टू यू, अगर आप उसके ऑनर होते तो उन गुड्स का आप जितना ख्याल रखते हैं आपको बेलर की गुड्स का भी उतना ही ध्यान रखना है. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग. सेकेंडली, एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन. गाइज, एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन मतलब एज अ मैन ऑफ फेयर एवरेज इंटेलिजेंस. अगर हम यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ नेग्लिजेंट मैन, यू डू नॉट हैव टू एक्ट नेग्लिजेंटली. एज अ बेली अगर आप नेग्लिजेंट हो, आपके पार्ट पे लैक ऑफ केयर है, आपको ड्यू केयर रखनी थी, जितनी रीजनेबल केयर रखनी थी उतनी आपने नहीं रखी इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, तो आप वहाँ पे नेग्लिजेंट हो. सो इफ आई से दैट यू हैव टू एक्ट एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, इट मीन्स you have to act as a man of average fair intelligence. As a man of fair average intelligence, here we are not talking about a negligent man. So you have to act as an ordinary prudent man, as a man of fair average intelligence. You do not have to act negligently and you have to act in similar circumstances the way you would have acted had those goods belonged to you. I hope you are getting it. Goods of same bulk, same quantity, same quality, same value. I hope you are getting it कि अगर वो goods आपकी होती, वही same quality की goods, उसी सेम क्वांटिटी की गुड्स, सेम वैल्यू, अगर वो गुड्स आपकी होती, हैड यू बीन दी ऑनर, तो जितना ध्यान आप अपनी गुड्स का तब रखते एज अ बेली भी आपको उतना ही ध्यान रखना है. एंड अगर आपने उतना ध्यान नहीं रखा, ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन जैसा ध्यान भी नहीं रखा, अगर आप नेग्लिजेंट बिहेव करोगे, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर एनी लॉस, any destruction, any damage, any deterioration to the goods of the bailor. I hope you have understood the significance of section 151 of the Indian Contract Act, and this is a duty, first and the foremost duty of the bailee, that you have to take reasonable care of the goods bailed. But guys, on the same hand, section 152 ये कहता है कि आपको reasonable care तो रखनी है, लेकिन अगर बेली के रीजनेबल केयर रखने के बावजूद गुड्स को कोई ना कोई लॉस या डिस्ट्रक्शन होती है, then बेली is not responsible. Guys, it is a point to be noted that bailee is not liable for any loss, any destruction
or deterioration to the goods if he had taken reasonable care. Reasonable care का मतलब अगेन ड्यू केयर है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू केयर जो सेक्शन 151 में स्टडी किया है. ड्यू केयर मीन्स रीजनेबल केयर. रीजनेबल केयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. But if I talk about standard of care, according to section 151 of the Indian Contract Act, it means you have to act as an ordinary prudent man under similar circumstances had those goods belonged to you as an owner. So जितना ध्यान आप अपने goods का रखते हैं उतना ही ध्यान आपको bailor की goods का रखना है. And if you have taken due care, reasonable care on your part, then you won't be held liable for any loss, any destruction, any deterioration to the goods of the bailor. क्योंकि guys जो आपका बेली होता है ना, ही इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंश्योरर. पॉइंट है कि ही इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंश्योरर फॉर द सेफ्टी ऑफ गुड्स. बेलर ने अपनी गुड्स बेली को दी, वो अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, बट बेली इज अ पर्सन, राइट. ही इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंश्योरर ऑफ द सेफ्टी ऑफ गुड्स. तो अगर रीजनेबल केयर रखने के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे गुड्स डिस्ट्रॉय होती हैं तो वहाँ पे ही इज नॉट लायबल. बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट burden of proof lies on the bailee himself. मुझे ये शो करना होगा, I have to satisfy the court, I have to convince court in a way or the other that yes, I have taken due care of the goods bailed, and despite this reasonable care, despite care taken by an ordinary prudent man, goods have been destroyed. So it could be an act of God guys, it could be an act of God, it could be an inevitable accident. कोई भी आप defense plead कर सकते हो, but you as a bailee have got to prove, have got to satisfy and convince the court that yes, you have taken due care. तो आपको ये show करना है कि आपने due care रखी थी, reasonable care रखी थी. Because guys, I've always told you that law never asks you to guard against fantastic possibilities. जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, by fantastic possibilities का मतलब होता है कि something which is beyond your control, something which you cannot anticipate. जो चीज़ as an ordinary prudent man, अगर कोई भी इंसान होता आपकी जगह पे भी, अगर वो भी इंसान इस चीज़ को प्रिवेंट ना कर पाता तो वहाँ पे कोर्ट कहेगा yes, you have taken due care. ये एक act of God था, ये चीज़ अनएंटिसिपेटरी थी, या आप इसको इट वॉज अनफोर्सनेबल एंड यू कुड नॉट हैव गार्डेड अगेंस्ट. तो वो चीज़ होती है. आई विल बी गिविंग एन इलस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव स्टोर्ड गुड्स इन अ गडाउन. किसी और की गुड्स आपने अपने गडाउन में स्टोर कर ली हैं. अगर वो आपकी गुड्स होती फिर भी आप उसी गडाउन में उसी तरीके से टार्पोलिन से उसको कवर करके रखते. सो यू हैव टेकन ड्यू केयर ऑफ द गुड्स. What happened is one day floods आ गई या earthquake या landslide के कारण those goods were destroyed. It means you have got to prove in the court of law कि आपने इस तरीके की precautions ली थी. You have acted as an ordinary prudent man, as a man of fair average intelligence, and despite all your efforts, this destruction of goods has taken place. If you convince the court, if you satisfy the courts that मैंने reasonable care रखी थी, उसके बाद court cannot make you held liable because you are not an absolute insurer for the safety of those goods. Court never asks you to guard against fantastic possibilities. Fantastic मतलब something which is unforeseeable, something which is unanticipated, something which is beyond your control. उस चीज़ की आपको कोर्ट नहीं कहेगा कि आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है. You just have to act as an ordinary prudent man. But guys, a point to be noted is that section 152 clearly बोलता है कि unless a specific contract to the contrary has been signed. If a contract to the contrary has been signed, to the contrary to what? Contrary to the general rule. जनरल रूल मैं आपको बता चुकी हूँ कि इफ़ यू हैव टेकन ड्यू केयर एंड यू हैव सेटिस्फाइड और कन्विंस्ड द कोर्ट दैट यू हैव टेकन ड्यू केयर विच वॉज रिक्वायर्ड ऑफ यू बाय लॉ. लॉ जितनी केयर आपसे मांगता था आपने उतनी रखी. इफ़ यू हैव सेटिस्फाइड द कोर्ट इनफ कि ऐसा हुआ है तो आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी डिस्पाइट गुड्स लॉस, डिस्पाइट एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन टू द गुड्स. बट अगर यहाँ पे इफ़ देयर वॉज एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होगा कि बेली विल बी हेल्ड लायबल व्हाटसोएवर, कोई एक्ट ऑफ गॉड हो, कोई इनएविटेबल एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, व्हाटसोएवर बेली विल बी हेल्ड लायबल, तो वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बनेगी. बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि अगर जनरल रूल से हटके कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी स्टिपुलेशन लिखी है विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी टू द जनरल रूल विच इज़ फॉलोड, तो वहाँ पे वो एक्सेप्शन जो होती है वो काम करती है. तो वहाँ पे अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना कि इफ़ देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी में ये लिखा होगा, फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा टू द कॉन्ट्ररी तो उसमें ये लिखा होगा कि whatsoever happens, कोई भी एक्ट ऑफ गॉड हो, कोई भी इनएविटेबल एक्सीडेंट हो, बेली विल बी हेल्ड लायबल डिस्पाइट एनी रीजन. कुछ भी हो आपकी लाइबिलिटी, इट मीन्स वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगी. गाइज इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड कि वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगी. देन यू डू नॉट हैव टू टेक स्पेशल, यू डोंट हैव टू टेक अ रीजनेबल केयर, वहाँ पे आपको स्पेशल केयर लेनी होगी. तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो ऑल द मोर इंक्रीज हो जाएगा. इसीलिए गाइज बोलते हैं कि रीजनेबल केयर को रखना इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी. हम बोलते हैं कि यू हैव टू टेक एज अ बेली, यू आर ड्यूटी बाउंड टू टेक रीजनेबल केयर.
ये जो रीजनेबल केयर है ना, स्टैंडर्ड ऑफ केयर सेक्शन 151 में जो लिखा है, इट इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूट कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस स्टैट्यूट ने आप पे एज अ बेली एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करी है, ये एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है दैट यू हैव टू टेक रीजनेबल केयर। किस तरीके की रीजनेबल केयर? वो सेक्शन 151 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो यू हैव टू टेक रीजनेबल केयर एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी इम्पोज्ड बाय स्टैट्यूट अपॉन अ बेली एंड इट कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ। दिस ड्यूटी, रीजनेबल केयर रखने की ड्यूटी कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ गाइज। इट मीन्स अ बेली कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस ड्यूटी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बहुत बार कंट्रोवर्सी होती है, इसीलिए हम फोकसिंग मोर ऑन दिस पॉइंट। बहुत बार लिखा है कि सेक्शन 152 बोलता है कि इफ देर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी काम करेगा, अदरवाइज जनरल रूल काम करेगा। जनरल रूल क्या है कि इफ यू हैव टेकन ड्यू केयर, इफ यू हैव टेकन रीजनेबल केयर, यू वोंट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी फर्दर लॉस और डिस्ट्रक्शन टू द गुड्स बेल। And burden of proof RPP has a Bailey that you have to convince or satisfy the court. If you have done so, you will be, आप कह लो कि आप अपनी लाइबिलिटी से खत्म हो जाएगी, और लाइबिलिटी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बट अ पॉइंट टू बी नोटिस इज दैट लाइन कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है सेक्शन 152 में दैट अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, वहाँ पे अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, उसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन वेव ऑफ योर लाइबिलिटी। उसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन कॉन्ट्रैक्ट योर सेल्फ आउट। You cannot contract out yourself out of at least this reasonable care. This is something which you have to take care. But अगर आप contract to the contrary करते हो, उसका मतलब ये है कि आप अपनी liability standard of care को improvise करते हो। आप उसको dilute नहीं करोगे, आप उसको improvise करोगे। जितनी आपको care रखनी थी was reasonable care, due care. But अगर आपने contract to the contrary किया section 152 के according, then you have to take all the more care. तो वो आपकी लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बन जाएगी एंड यू हैव टू टेक स्पेशल केयर इंस्टेड ऑफ रीजनेबल और ड्यू केयर। आई होप गाइज आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। आई एम गोइंग टू रिपीट इट ऑल ओवर अगैन। First and the foremost important duty of a Bailey is that he has to take reasonable care. Reasonable care more often than not is a question of fact which depends upon facts and circumstances of each case. But section 151 talks about some standard of care which is to be taken, standard of reasonable care which is to be taken. And that care is that of an ordinary prudent man. Ordinary prudent man का मतलब होता है कि you have to act as a man of fair average intelligence. Here we are not talking about a negligent man. हम negligent man की बात नहीं करते हैं। Had you been the owner, तो ऑनर होते हुए आप अपनी गुड्स का जितना ध्यान रखते हैं उतना ही ध्यान आपको बेलर की गुड्स का रखना है। दिस इज इट जो आपको सेक्शन 151 में देखने को मिलेगा। सेक्शन 152 क्लियरली बोलते हैं कि अगर बेली ने रीजनेबल केयर रखी थी और बर्डन ऑफ प्रूफ बेली पे है, अगर उसने कोर्ट को कन्विंस कर दिया कि येस रीजनेबल केयर वाज टेकन बाय हिम, डिस्पाइट टेकिंग रीजनेबल केयर गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, तो वहाँ पे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये एक जनरल रूल है बिकॉज ही इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंश्योरर गाइज, ही इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंश्योरर फॉर सेफ्टी ऑफ गुड्स। You cannot ask him to guard against fantastic possibilities of which he cannot even think of, right? Of which he cannot even anticipate. Something which is beyond his control. तो आप उस चीज़ के लिए उसको नहीं लायबल ठहराओगे। But if there is a contract to the contrary, तो वो contract क्या होगा? वो ये होगा कि कम वॉट में जो मर्जी हो, अगर गुड्स, बेलर ये कहेगा कि कम वॉट में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होती हैं, बीट एन एक्ट ऑफ गॉड और एन इनएविटेबल एक्सीडेंट, बेली की लाइबिलिटी होगी। तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी का मतलब क्या है कि योर लाइबिलिटी स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज ऑल द मोर, बहुत ज़्यादा हो गया है। नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग रीजनेबल केयर यू हैव टू टेक अ स्पेशल केयर एंड योर लाइबिलिटी हैज बिकम एन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आई होप आपको पता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमने कवर किया था, इज अ लाइबिलिटी जहाँ पे आप कोई डिफेंस प्लीड नहीं कर सकते, 100% लाइबिलिटी आपकी होती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी अगर आप करोगे सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी जो लाइबिलिटी है उसको ऑल द मोर इम्प्रोवाइज करोगे, आप उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते हो। आई होप गाइज आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन विच कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ। अ बेली कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस रीजनेबल केयर। ये तो कम से कम केयर है जो आपको रखनी है। यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट योर सेल्फ आउट कि मैं इतनी भी केयर नहीं रखूंगा। इट इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी एंड यू हैव टू फुलफिल इट। इससे ज़्यादा ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हो आप, वो किस तरीके से? कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी अगर आप कर लेते हो। आई होप गाइज आपको सेक्शन 151 एंड 152 क्लियर हो चुका है। So talking about the second most important duty of a Bailey is that you do not have to make any unauthorized use of the goods bailed. Guys ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वैसे unauthorized use का मतलब होता है कि आपको पता है कि ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट goods are always bailed for some specific purpose or objective. I've bailed my car to you for a day or so that you can attend a wedding ceremony. I have given an example previously also. It means
वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करना इज अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच आई हैव बेल्ड एज एन ऑनर आई हैव बेल्ड माई कार टू यू। मैंने अपनी कार की पोजीशन आपको दे दी फॉर अ डे। इट मीन्स आपको वही ऑथोराइज्ड यूज करना है। एज अ बेली यू कैन नॉट मेक अनऑथोराइज्ड यूज। अनऑथोराइज्ड यूज का मतलब होगा कि यू कैन नॉट एक्ट इनकंसिस्टेंटली विद द स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस है। स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि आपको मैरिज सेरेमनी के लिए मेरी कार लेनी है। यू हैव टेकन दैट कार फॉर मी, सो दैट वाज अ स्पेसिफिक पर्पस और ऑब्जेक्टिव फॉर विच आई हैव बेल्ड माई कार टू यू। Now you cannot act inconsistently with that specific purpose. You have to act in accordance with that specific purpose. But guys, अगर आप एक अनऑथोराइज्ड यूज करते हो जिसकी अथॉरिटी मैंने तो नहीं दी एज एन ऑनर, वाइल अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वॉज एंटर्ड इनटू, मैंने उस चीज़ की अथॉरिटी आपको नहीं दी, डिस्पाइट दैट फैक्ट आपने उसको अनऑथोराइज्ड यूज कर लिया, तो मेरी गुड्स को कुछ भी हो सकता है, एनी लॉस, एनी डिस्ट्रक्शन, एनी डिटीरिएशन, माई गुड्स कैन मेट एनी लॉस। तो वहाँ पे अगर मेरी गुड्स को कोई लॉस होता है, सो यू विल बी ऑब्लिग्ड दैट यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन टू मी एंड आई कैन रिकवर दैट कॉम्पनसेशन फ्रॉम यू बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। I hope I have made myself clear कि you are duty bound not to make any unauthorized use. Authorized use मतलब जिस चीज़ की authority मैंने आपको दी है, it is nothing but this specific purpose or objective for which the contract of bailment was entered into. Marriage ceremony को attend करना. For example, I have given my cloth to you. मैंने अपना cloth आपको किस चीज़ के लिए दिया? स्टिचिंग के लिए दिया. You are a tailor. I have given my cloth to you, a fabric basically to you, so that you can stitch a suit. आपने क्या किया? सूट तो स्टिच कर दिया, बट उसको साथ के साथ ड्राई क्लीनिंग कर दिया. एंड वाइल ड्राई क्लीनिंग उस क्लॉथ को जो है वो कोई और कपड़ा, यानी कि वो जो क्लॉथ है उसको आपने कोई और कलर भी कर दिया, डाइंग कर दी अलॉन्ग विद ड्राई क्लीनिंग, विच हैव नॉट ऑथोराइज्ड यू. मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना फैब्रिक आपको सूट लेंथ स्टिच करने के लिए दिया था, बट इंस्टेड ऑफ स्टिचिंग इट, यू हैव स्टिच्ड इट, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, आपने उसके साथ साथ क्या कर दिया? Simultaneously you have dry cleaned it also and dyed it also. So that was an unauthorized use. उस चीज़ की authority मैंने आपको नहीं दी थी. And while you were into that unauthorized use of my goods, अगर मेरी goods को कुछ होता है, my cloth might be destroyed. अगर आप उसको tying and tying करोगे तो उसको कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे I can claim compensation from you. I can recover it and you are obliged कि you have to pay me, क्योंकि you have made a breach of your duty. योर ड्यूटी वॉज कि जिस चीज़ के लिए मैंने आपको दिया उसी चीज़ के लिए आपने उसको करना है. एज सुन एज दैट पर्पस इज अकम्प्लिश्ड यू हैव टू रिटर्न इट बैक टू मी विदाउट इवन डिमांडिंग. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. सो सेक्शन 153 एंड 154 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद इट. बेसिकली वो बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू मेक एनी अनऑथोराइज्ड यूज. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अपनी चीज़ दिया, आई हैव गिवन माई कार टू यू टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी, एंड आपने वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने के बाद यू डिस्पोज्ड इट ऑफ. इट मीन्स अगेन इट इज़ एन अनऑथोराइज्ड यूज. ये सारे इलस्ट्रेशन है गाइस जो मैं आपको दे रही हूँ, इट इज़ एन अनऑथोराइज्ड यूज. जिस चीज़ की अथॉरिटी मैंने आपको नहीं दी, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो. मैंने आपको दिया वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए, एंड वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने के साथ साथ आपने क्या किया? यू हैव डिस्पोज्ड इट ऑफ. इट मीन्स you can dispose it off, but according to the directions of the bailor. इस चीज़ की अथॉरिटी मैंने आपको नहीं दी, बट आपने कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा? सेक्शन 153 बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू मेक एनी अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड. आपको अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना. जो स्पेसिफिक पर्पस है उसी पर्पस के लिए आपको गुड्स को यूज करना है. वंस दैट पर्पस इज अकम्प्लिश्ड यू आर ड्यूटी बाउंड टू रिटर्न इट बैक टू द बेलर. दैट्स ऑल. सेक्शन 153 बोलते हैं कि अगर आप अनऑथोराइज्ड यूज करोगे एज अ बेली, so according to this section bailor has two remedies. He has two remedies available. एक तो वो क्या करेगा? he may terminate your bailment. वो आपकी bailment को ख़त्म कर सकता है. Obviously जब मैंने अपनी कार आपको दी, ठीक है, कि आप इसको वेडिंग सेरेमनी के लिए अटेंड करो, एंड यू आर रोमिंग हेयर एंड देयर विद माई कार, आई वॉन्ट दैट कार बैक आफ्टर अ डे, आई हैव टोल्ड यू, बट यू हैव नॉट रिटर्न इट बैक टू मी, सो आई कैन टर्मिनेट दैट बेलमेंट. Terminate means to put an end to that bailment. Obviously, I may put an end to that bailment. पहली बात, मैंने bailment pen क्यों लगाया? Because you were acting inconsistently with the specific purpose. Specific purpose जिसके लिए मैंने आपको कार दी, उसको यूज करने की बजाय you are using it, for an unauthorized act, which is inconsistent with, it is not in accordance with this specific purpose. And section 154 says, it also gives us the second remedy. First remedy is that according to section 153 that you as a bailor may terminate the employment, and secondly bailor can recover compensation from the bailee for any loss, any destruction, any deterioration to the goods bailed. For example, I have bailed my car to you for a day. मैंने सिर्फ एक दिन के लिए दिया था. आपने क्या किया? After 4 to 5 days, बहुत दिन हो चुके हैं, you have kept that car in your godown or at your home. You have not returned it back to me. And someday what happened is that, that car of mine caught fire. Now what happened is my goods have been, destroyed by an act of God. Be it an act of God, but again my goods have been destroyed.
क्योंकि मैंने जिस चीज़ की आपको अथॉरिटी दी थी, आप यू हैव डिविएटेड फ्रॉम दैट अथॉरिटी, यू हैव गॉन फार बियॉन्ड दैट अथॉरिटी. सो इसीलिए आई एम entitled, बेसिकली मैं लॉ की तरफ से entitled हूँ एज अ बेलर दैट आई कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम यू फॉर एनी अनऑथोराइज्ड एक्ट दैट यू हैव डन and as a result of which my goods have suffered any loss, destruction or deterioration. तो सिंपल से इतना लिखा है कि you do not have to deviate from this specific purpose. You have to work in accordance and consistently with the specific purpose. If you deviate yourself and मेरी goods को as a bailor नुकसान होता है, I have two remedies. पहले तो I will terminate that bailment. Secondly, I will claim compensation from you and I am lawfully entitled to do that. I will do that and you are obliged to pay it back to me. वो compensation आप मुझे दोगे. But guys, the point to be noted is that यहाँ पे जो ये liability होती है ना unauthorized use की, ये absolute liability होती है. Absolute liability का मतलब क्या है कि अब आपको पता है कि आपने मेरी गुड्स को अनऑथोराइज्ड यूज़ नहीं करना. आपको पता है कि इट हैज़ बीन गिवन टू मी फॉर अ डे, सिर्फ एक दिन के लिए कार मिली है, बट यू आर कीपिंग इट फॉर सेवरल डेज एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड इज मेरी कार को क्या होता है, यू हैव टेकन ड्यू केयर. यू सेड दैट मैंने एक दिन के लिए आपकी कार चलाई थी, 4 to 5 days हो चुके हैं, आई हैव नॉट यूज्ड इट, वो मेरे घर पे सेफली खड़ी है. एक्ट ऑफ गॉड हुआ, फ्लड्स आई, लैंडस्लाइड्स हुआ, मेरी कार के ऊपर बिल्डिंग गिर गई एंड दैट कार इज डिस्ट्रॉयड. गाइज यहाँ पे यू कैन से दैट आई हैव टेकन रीजनेबल केयर. अब आप इस पॉइंट को इन्वोक कर सकते हो कि मैंने अनऑथोराइज्ड यूज़ किया. अनऑथोराइज्ड यूज़ भी किस तरीके से किया कि यू हैव बेल्ड इट to me for a day. After that purpose is accomplished, you are duty bound to return that good to me. How come you are not returning it? You have to return it back to me. अगर आपने रिटर्न नहीं किया, it means you have deviated from this specific purpose or objective of contract of bailment and you have kept it at your home. अब आपने अपने घर पे रखा है, बेशक you have taken due care, आपने reasonable care रखी है उस कार की, despite that fact उस कार को कुछ हो गया, वहाँ पे भी आप डिफेंस अवेल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट से कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड, इट वॉज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट, लैंडस्लाइड हो गया, आपकी कार खराब हो गई, मैंने ध्यान रखा था. बट नहीं, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. बाय एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आई मीन कम वॉट में, जो मर्जी हो, क्योंकि आपने अनऑथोराइज्ड यूज़ किया इसीलिए माई गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड. यहाँ पे आप कोई डिफेंस प्लीड नहीं कर सकते हो वाइल हमारा स्पेसिफिक पर्पस वॉज अकम्प्लिश्ड. फॉर एग्जाम्पल, यू वर टेकिंग दैट कार to that marriage ceremony and in between on the way back, going or coming back, अगर goods को उस दौरान कुछ होता है, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि I have taken reasonable care of the goods bailed despite taking reasonable care and you have got to prove it also. अगर आप उसको प्रूव कर देते हो तो वहाँ पे you can escape from your liability. बट अगर आपको पता है कि आपने unauthorized यूज़ किया है, the purpose for which this contract of bailment was taken place, वो purpose accomplish हो चुका है, उसके बाद इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट बैक टू मी एज अ बेलर आपने अपने घर पे रख लिया. बेशक आपने वहाँ पे ड्यू केयर भी रखी, क्योंकि आपने अनऑथोराइज्ड यूज़ किया था. यू कैन नॉट टेक एनी डिफेंस एंड योर लाइबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. इसकी मैं आपको इलस्ट्रेशन देती हूँ, एक और इलस्ट्रेशन देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बेल्ड माई हॉर्स टू यू फॉर राइडिंग. आई हैव बेल्ड माई हॉर्स टू यू फॉर राइडिंग, सोनली टू यू फॉर राइडिंग. आई हैव सेड कि सिर्फ आप इसको चलाओगे. इट मीन्स एक स्पेसिफिक पर्पस है एंड फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड मैंने आपको अपनी गुड्स दे दी और मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपको अथॉरिटी है कि यू कैन ड्राइव माई हॉर्स. बट what happened is instead of driving it yourself, you have given it to your friend. आपने उसको अपने फ्रेंड को दे दिया, यानी कि आपने कहा कि कोई बात नहीं तुम चला लो. Now while that person was riding that horse, what happened is that person fell and horse got injured. अब मेरी प्रॉपर्टी को क्या हुआ, इंजरी हुई. इट मीन्स वहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम यू. आप ये नहीं बोल सकते कि माई फ्रेंड वॉज ड्राइविंग इट विद रीजनेबल केयर, उसने पूरा ध्यान रखा था एंड डिस्पाइट रीजनेबल केयर this horse met with an accident, इसलिए I'll not give you a compensation. I'll say you have made an unauthorized use of my good, इसलिए your liability has become an absolute liability and you cannot plead any defense. I hope guys this section is quite clear to you. Section 151, 152, 153 and 154. So far we have covered only 4 sections of the Indian Contract Act. Talking about the next important duty, which is you are duty bound not to mix my good with your goods. मेरी goods को अपनी goods के साथ mix नहीं करना. Guys यहाँ पे आप point देख रहे हो goods. Goods is very much important क्योंकि मैंने आपको beginning में बताया था कि हमेशा bailment में क्या होगी, movable property होगी. Movable property क्या होती है, goods. Goods are nothing but movable property. इसीलिए बार बार यहाँ पे words आ रहे हैं goods. Goods मतलब movable property and bailment पे हमेशा movable properties ही होती है जो subject matter of contract of bailment होता है. अब गाइज यहाँ पे ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है. ये सेक्शन क्या बोलते हैं कि यू आर ड्यूटी बाउंड एज अ बेली, यू डोंट हैव टू मिक्स योर गुड्स विद माई गुड्स, राइट. बट अगर आप बेलर के कंसेंट के साथ गुड्स को मिक्स करते हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल,
आई एम अ बेलर, आई एम एन ऑनर ऑफ 10 फैंस। मैंने अपने फैंस आपको दिए रिपेयर करने के लिए, आपने उन फैंस को अपने पास रख लिया, उनको रिपेयर कर दिया। आपने कहा कि मेरे पास पे 10 फैंस है, मेरे को एक ऑर्डर आया है 20 फैंस का, हम उनको रेंट पे दे देते हैं 20 फैंस। तो आपने मुझसे क्या किया, आप एक बेली हो, आपने मुझसे क्या किया, परमिशन ले ली। आप से दैट ओके आई एम अ बेली, आई एम अ बेलर एंड यू कैन मिक्स माई गुड्स विद योर गुड्स। आप मिक्स करके 20 फैंस उनको दे दो और वहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि उन्होंने जो फैंस लिए थर्ड पर्सन ने वो रेंट पे लिए, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ क्या है रेंट है ऑफ दोज 20 फैंस। अब वहाँ पे क्या होगा, यू हैव एज अ बेली यू आर ड्यूटी बाउंड नॉट टू मिक्स दोज गुड्स। अपनी गुड्स को आप बेलर की गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते, बट अगर आप बेलर की कंसेंट के साथ मिक्स करते हो गुड्स को, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो बिल्कुल इशू नहीं है। वो आपको हम सेक्शन 155 क्लियरली बोलता है कि इफ़ यू आर मिक्सिंग, यानी कि बेलर्स गुड्स इज मिक्सड विद बेलीज गुड विद बेलर्स कंसेंट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 फैंस मेरे थे, 10 फैंस आपके थे, यू हैव मिक्सड इट, आपने आगे रेंट पे दे दिया 20 फैंस फॉर 50,000 रुपीज़। अब क्या होगा, जब वो 50,000 रुपीज़ आएंगे, हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे 25,000 ईच, 25,000 बेलर का, 25,000 बेली का, क्योंकि क्या होगा, यू हैव टू अपॉर्शन इट, यू हैव टू शेयर इट आउट। वो जो रेंट आता है वो हम अपॉर्शनमेंट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिस्पेक्टिव शेयर्स, जितना हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर मेरे 15 फैंस होते, आपके 5 फैंस होते, तो मेरे को 25,000 से थोड़ा ज़्यादा मिलता। आई होप यू गेटिंग इट, क्योंकि वो हमारा जो शेयरिंग आउट है, अपॉर्शनमेंट है, वो हमारा रिस्पेक्टिव शेयर्स 50% है, तो 50% मनी मैं रख लूँगी, 50% आप रख लेना। तो वहाँ पे क्या है, यू आर ड्यूटी बाउंड नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स विद बेलीज गुड्स, बट अगर आपने बेलर की कंसेंट ली है तो आप मिक्स कर सकते हो। सेक्शन 155 सिर्फ यही कहते हैं कि यू कैन मिक्स बेलर्स गुड्स विद योर ओन गुड्स वंस यू हैव टेकन द कंसेंट ऑफ द बेलर एंड ही हैज कंसेंटेड टू डू दैट। उसने कंसेंट दे दिया, बाद में जो भी आपका पैसा आता है उसके आप अपॉर्शनमेंट कर लेते हो, शेयरिंग आउट कर लेते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस। अगर आपका 50-50% तो 50-50% अपने रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग शेयरिंग आउट कर लोगे। बट गाइज व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स क्या होता है कि जो बेली होता है ना, वो बेलर के कंसेंट के बिना उसके गुड्स को मिक्स कर लेता है। आपको कंसेंट लेना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155, कंसेंट आपने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू हैव नॉट टेकन ड्यू कंसेंट ऑफ द बेलर, बेलर का आपने कंसेंट लिया नहीं और आपने उसकी और अपनी गुड्स को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती हैं, गुड्स जो है वो सेपरेबल भी हो सकती है, नॉन सेपरेबल भी हो सकती हैं। वाइस फॉर एग्जाम्पल, यही आप फैंस के एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, यू हैव मिक्सड योर 10 फैंस विद 10 फैंस ऑफ द बेलर। बेलर और बेली, बेली ने क्या किया, अपने 10 फैंस को बेलर के 10 फैंस के साथ मिक्स कर दिया विदाउट हिज कंसेंट, उसका कंसेंट नहीं लिया, मिक्स कर दिया। एंड दीज गुड्स आर समथिंग विच आर सेपरेबल, सेपरेबल है, फैंस को आप अलग कर सकते हो। बट गाइज व्हाट हैपेंड इज, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्लोर था, आई एम अ बेली, मेरा एक फ्लोर है जो बहुत ही लो क्वालिटी का, 25 रुपीज़ पर kg का आटा है, फ्लो है। आई हैव मिक्सड माई फ्लोर विद द फ्लोर ऑफ द बेलर, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। डू यू थिंक कि वो जो आपका फ्लोर है वो सेपरेबल है? नहीं। तो बहुत बार ऐसा होगा कि यू हैव टू मिक्स योर गुड्स, यू कैन मिक्स योर गुड्स एज अ बेली विद बेलर्स गुड्स अकॉर्डिंग विद हिज कंसेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155। बट सेक्शन 156 एंड 157 क्या बोलता है कि बहुत बार ऐसा होगा कि जो बेली है, ही मिक्सेज his own goods with that of the bailor without his due consent। आप उसका कंसेंट लेते नहीं और अपनी गुड्स को मिक्स कर देते हो। तो वहाँ पे दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं, गुड्स सेपरेबल भी हैं, नॉन सेपरेबल भी हैं। अगर तो वो गुड्स सेपरेबल हैं तो आपको क्या करना है, आपको सेपरेट करनी है अपनी गुड्स फ्रॉम द गुड्स ऑफ द बेलर देन एंड देयर, आपको वहीं पे सेपरेट करना है। एंड बेली हैज़ टू इनकर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन, ऑफ डिविजन और एनी इंसिडेंटल डैमेज देयर टू। गाइस अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट अगर वो सेपरेबल हैं तो आप उसको सेपरेट करो, पर सेपरेट करने का जो भी खर्चा आएगा, डिवीजन करने का जो भी एक्सपेंस होगा और एनी इंसिडेंटल डैमेज, उसी से रिलेटेड अगर कोई भी डैमेज होगा तो उसका खर्चा सारा का सारा बेली उठाएगा। बिकॉज यहाँ पे बेली की गलती है एंड यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग। आपकी गलती, आपने उसके कंसेंट के बगैर उसकी गुड्स को मिक्स कर दिया। सिंस थैंक गॉड दे वर सेपरेबल, तो आपने उनको सेपरेट किया और जो भी सेपरेशन पे आपको एक्सपेंस आएगा वो आप ही को इनकर करना है एज अ बेली। बट गाइज व्हाट हैपन्स अगर वो गुड्स नॉन सेपरेबल हैं, मैंने अपने चीप क्वालिटी के फ्लोर को हाई क्वालिटी फ्लोर के साथ मिक्स कर दिया एंड दीज ग्रेन्यूल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। नाउ व्हाट कैन बी डन, अब यहाँ पे क्या होगा, अब वो ग्रेन्यूल्स सेपरेट नहीं हो सकती हैं। आई कैन कीप द एंटायर अमाउंट विद मी, वो जो भी बना मिक्सचर मैं अपने पास रख सकती हूँ, बट आई हैव टू कॉम्पनसेट द बेली, मुझे उसको बेलर, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू कॉम्पनसेट द बेलर जितना भी उसका खर्चा था। अगर वो 75 रुपीज़ पर kg है तो जितने भी kgs का उसका फ्लोर मेरे पास था, आई हैव टू कॉम्पनसेट हिम फॉर दैट। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि आई एम ड्यूटी बाउंड नॉट टू मिक्स दोज गुड्स
with my goods without bailor's consent. If he has consented to do that, I will do that. और जो भी हमारा बाद में रुपीज़ हमारे पास मॉनिटरी वैल्यू होगी उसको हम अपॉर्शनमेंट कर लेंगे, शेयरिंग आउट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस, अकॉर्डिंग टू आवर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट्स. बट सेक्शन 156 एंड 157 सेज दैट बहुत बार बेली बेलर के कंसेंट के बिना उसके गुड्स को मिक्स एंड मर्ज कर लेते हैं, विच ही इज़ नॉट ऑथोराइज्ड टू डू. आपको अथॉरिटी तो नहीं है, उसी तरीके से आपने एक अनऑथोराइज्ड एक्ट किया, यू वर नॉट ऑथोराइज्ड. बेलर का कंसेंट तो आपने लिया नहीं, इट मीन्स इट वॉज एन अनऑथोराइज्ड एक्ट. तो वहाँ पे ऑब्वियसली गलती आपकी है, तो यू हैव टू बियर एक्सपेंस. सेपरेबल है तो उसको सेपरेट करने का जो एक्सपेंस आएगा और एनी एक्सपेंस विच इज़ इंसिडेंटल टू दैट सेपरेशन वो आपको बियर करना है. और अगर वो इनसेपरेबल है, वो सेपरेट हो ही नहीं सकता, तो आपको इंटायर अमाउंट जितनी भी उसकी वैल्यू थी ना गुड्स की, बेसिकली वैल्यू ऑफ गुड्स, वो आपको पे करना है एज कॉम्पनसेशन टू द बेलर. आई होप गाइज आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी of a bailey is you are duty bound to return those goods. Guys, ये तो पॉइंट हम ऑलरेडी बिगिनिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि गुड्स को रिटर्न करना इज sine qua non ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट. sine qua non का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट. जिस तरीके से मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट कि सबसे पहले गुड्स को डिलीवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप गुड्स की डिलीवरी नहीं करोगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैन नेवर कमेंस. उसी तरीके से यू हैव टू रिटर्न इट, एंड दिस इज समथिंग विच डिस्टिंग्विशेस दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. I've told you beforehand, right? So इसीलिए रिटर्न करना इज sine qua non ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू रिटर्न इट as soon as the specific purpose for which the goods have been given to you has been accomplished. मैरिज अटेंड करने के लिए दिया था, सूट को स्टिच करने के लिए दिया था, फैब्रिक मैंने आपको सूट स्टिच करने के लिए दिया था, कार मैंने आपको अपनी सर्विस के लिए दी थी. So as soon as these specific purposes for which the goods have been billed is accomplished or fulfilled, you have got to return those goods back to the bailor without even that person demanding. उसको डिमांड करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको उसको वापस करनी होगी. वापस नहीं तो अगर आपको बेलर ने कह दिया कि you can dispose it off, so as per the directions of the bailor you can even dispose it off. तो या तो आप उसको रिटर्न करोगे जब आपको स्पेसिफिक पर्पस हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड और सर्टन टाइम पीरियड हैज़ बीन एक्सपायर्ड. गाइस कई बार टाइम पीरियड भी होता है कि यू कैन टेक इट फॉर 4 days, 4 दिन के बाद मुझे आप वापस कर देना. सो व्हेन सर्टन टाइम पीरियड हैज़ बीन एक्सपायर्ड for that contract of bailment or purpose for which specific purpose for which the goods have been billed is accomplished or fulfilled, you have got to return those goods back to the bailor, to the true owner, without even that person demanding. तो आपको उसको वापस करना होता है, ये होता है रिटर्न. You have to return those goods back to the bailor. I hope I've made myself clear. बेसिकली सेक्शन 160 इसी चीज़ की बात करते हैं कि आपको क्या करना है, गुड्स को वापस करना है. यू हैव टू रिटर्न दोज गुड्स बैक टू द ट्रू ऑनर. बट गाइज अब यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 150 हमें बोलता है कि आपको रिटर्न करना है. व्हाट इफ यू हैव नॉट रिटर्न्ड इट, तो क्या होगा. सेक्शन 161 टॉक्स अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द बेली. लाइबिलिटी, बेली की लाइबिलिटी की बात करते हैं. बहुत बार ऐसा होगा कि यू हैव नॉट रिटर्न इट, यू हैव फेल्ड टू रिटर्न दोज गुड्स बैक टू मी एंड समथिंग और द अदर थिंग हैज़ हैपेंड टू माई गुड्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अपनी कार 4 days के लिए दी थी, यू हैव केप्ट इट फॉर 7 days. इन बिटवीन दोज 2 to 3 days माई कार हैज़ कॉट फायर. बेशक वो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था, वो एक एक्ट ऑफ गॉड था, आपकी गलती नहीं थी. बट अगैन इट इज़ समथिंग विच इज़ एन अनऑथराइज्ड यूज़, इट इज़ नथिंग बट एन अनऑथराइज्ड यूज़. आपको मुझे रिटर्न करना है दीज 2 points, और फॉर दैट मैटर ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी मच रिलेटेड. अगर आप मुझे रिटर्न नहीं करोगे इट मीन्स पर्पस खत्म हो चुका है, टाइम हैज़ बीन एक्सपायर्ड, फिर भी आप मुझे वापस नहीं कर रहे हो. इट मीन्स इट इज़ नथिंग बट एन अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ दैट गुड विच आई हैव बिल्ड टू यू. उसकी अथॉरिटी तो नहीं है, अब अथॉरिटी खत्म हो चुकी है, अब आप उसको यूज़ कर रहे हो. तो उसके बाद भी अगर कुछ होता है मेरी गुड्स को, तो योर लाइबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. वहाँ पे यू हैव गॉट टू कॉम्पनसेट मी एज अ बेलर फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ गाइज. आई हैव गिवन माई बुक्स टू अ बुक शॉप फॉर बाइंडिंग. उन्होंने कहा कि 2-3 days में बाइंडिंग हो जाएगी. एज सुन एज दिस पर्पस ऑफ बाइंडिंग इज अकम्प्लिश्ड विल रिटर्न दिस गुड्स ऑफ बुक्स ऑफ योर्स बैक टू यू. बट गाइज व्हाट हैपेंड इज 7 to 8 days हो चुके हैं. 2-3 days की बाइंडिंग थी बट 7-8 days हो चुके हैं. ऑन 7th और 8th ऑफ डे ऑफ दैट मंथ व्हाट हैपेंड इज माई बुक्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड. देयर वॉज अ फ्लड in that book binding shop, and as a result my books have been destroyed. It means there is a loss, there's a destruction, there's a deterioration of the goods which I've bailed. तो वहाँ पे book binder is obliged that he has to compensate me for that, क्योंकि उसने मुझे return नहीं किया, and as a bailey he is duty bound that he have to return it back to me. और अगर वो return नहीं करता after certain specific purpose has been accomplished, time has been expired, according to section 161 उसकी liability भी बनती है, and that liability is an absolute liability because it is nothing but an
unauthorized use of the goods bailed. I hope guys I'm very clear. इसके बाद एक सेक्शन आता है 165. सेक्शन 165 टॉक्स अबाउट जॉइंट ऑनर्स. बहुत बार क्या होगा कि बहुत सारे जॉइंट ऑनर्स होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर गुड. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्टिकुलर कार, उसकी ऑनरशिप 2 से 3 लोगों के पास है, ठीक है. सो एक पर्टिकुलर गुड की कई बार जॉइंट ऑनरशिप होती है. जॉइंट ऑनर्स ने क्या किया, मिलके क्या किया, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर दिया. दे हैव बेल्ड दैट पर्टिकुलर गुड ऑफ theirs टू मी फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड और फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. उन्होंने मुझे बेलमेंट कर दी. अब इस क्वेश्चन ये आता है कि जब जॉइंट बेलमेंट होती है तो बेली किसको रिटर्न करेगा. तो 165 सेक्शन क्लियरली बोलते हैं कि अनलेस देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, जो बेली है वो किसी भी एक इंसान को वापस कर सकता है. बहुत सारे A B C D, देयर आर 4 जॉइंट ऑनर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड. और E एक इंसान है जिसको उन्होंने क्या किया, बेलमेंट कर दी ना. E जो है यहाँ पे एक इंसान, ही कैन रिटर्न that good back. He has to return it because he is the bailee and it is his duty. So he can return it back to any of these 4 people A, B, C or D क्योंकि they happen to be the joint owners unless there is a contract to the contrary. अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि हम सभी के प्रेजेंस में ही गुड्स वापस होंगी तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. फिर वो जनरल रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे 165 को. सो विल बी गोइंग बाय दिस स्टिपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. बट सेक्शन 165 सेज कि जब जॉइंट ऑनर्स होते हैं, बेली कैन रिटर्न दैट गुड बैक टू एनी ऑफ द 4 और 5 जॉइंट ऑनर्स. जितने भी लोग हैं उनको आप वापस कर सकते हो. किसी एक की डायरेक्शन पे भी आप काम कर सकते हो. अगर किसी एक ने कहा कि यू कैन डिस्पोज इट ऑफ, तो सपोज मैंने आपसे बेलमेंट करी थी, देयर वर 5 ऑनर्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, दे हैव बेल्ड इट बैक टू मी. अब जब मैं उसको रिटर्न करने गई तो वन ऑफ दोज 5 ऑनर्स told me that you can dispose it off in the market. So I've accordingly done that. It means ये भी क्या है, एक चीज़ valid है, I can. Those people can do that unless there is a specific contract to the contrary. Is it? Guys, last but not the least is that section 163 जो बहुत easy है, वो क्या बात करते हैं कि you are duty bound as a bailee that you have to return any profit, any increase or any accretions in the goods bailed. मुझे कोई भी, for example, I have bailed my cow to my neighbor since I have to go out of the village for a month. मुझे एक महीने के लिए बाहर जाना था, तो I have bailed my cow to him. It means मेरी cow जो है वो उसकी custody में है. Now what happened is in that 1 month cow has a calf. Calf is nothing but an accretion, a profit or an increase in the goods bailed. मैंने अपनी जो goods bail करी थी उसमें क्या हुआ, accretions हुए. तो guys क्या होगा, that person as a bailee is duty bound that he has to return my cow back to me along with accretions. अलॉन्ग विद एक्रेशंस उसको मुझे वापस करना है. तो ये पॉइंट लिखा है कि यू आर ड्यूटी बाउंड टू रिटर्न प्रॉफिट्स और एनी इंक्रीज और एनी accretions in the goods bailed. If there is any accretions, there is any accretions का मतलब अगर बढ़ोतरी होती है, किसी भी चीज़ में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसको हम accretions बोलते हैं. कोई भी प्रॉफिट, कोई भी इंक्रीज, unless there is a contract to the contrary, यही जनरल रूल फॉलो होगा. सेक्शन 163 ही एप्लीकेबल होगा. बट अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है टू द कॉन्ट्ररी, तो अगर ऐसा लिखा है कि एक्रेशंस को हम संभाल लेंगे एज अ बेली, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दी जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट इन द सेंस काउ दे दी जाएगी. तो इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, 100% दैट स्टिपुलेशन इज गोइंग टू बी फॉलोड. अदरवाइज जनरल रूल इज ऑलवेज देयर, हमें उसको फॉलो करना होता है. आई होप गाइज आपको ड्यूटीज ऑफ अ बेली समझ आ चुकी है. बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले रीजनेबल केयर, उसमें 2 सेक्शंस कंसर्न है, हमने डिस्कस कर लिया. सेकंड, यू डोंट हैव टू मेक एनी अनऑथोराइज्ड यूज, उसमें 2 सेक्शंस कंसर्न है. अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना, सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आपको काम करना है. थर्ड इज दैट यू डोंट हैव टू मिक्स दोज गुड्स. इफ यू आर मिक्सिंग इट विद द कंसेंट ऑफ द बेलर then it is okay, but if you are mixing it without his consent, then there can be 2 options. Either the goods are separable or non-separable. Separable है तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको एक्सपेंस bear करना पड़ेगा of separating them or dividing them. But if the goods are non-separable, then you have to compensate the bailor for the particular value of the goods. वो पूरी की पूरी goods की value के लिए आपको compensate करना होगा. Then again, you are duty bound to return those goods. I've told you कि you have to return it. अगर आप return नहीं करोगे तो सेक्शन 161 में आपकी liability भी लिखी है कि अगर as a result कोई भी loss, कोई भी destruction होता है, you have to bear expense for that. आपको compensation देनी होगी. Then in section 165 we talk about joint owners, and then also in section 163 we talk about any accretions, any profit or any increase in the goods bailed. As a bailee आपको वापस करना है along with the principal amount if there is no contract to the contrary. Guys, I hope I've made myself very clear. Still, if you have any doubts regarding duties of a bailee or bailor, please feel free to comment in the comment box. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.